there is no sense of having this lecture. तो जिस तरह हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और उनकी डेफिनेशन एक्स और वाई की डेफिनेशन डिस्टेंसेस है. Alternately, we can have a system in which we have center of the world called pole, this pole, and one particular direction considered as polar axis, which is in fact positive x-axis. And for any point in the plane, we consider distance distance from the pole is r, and the vector OP makes an angle with the polar axis or positive x-axis. Theta is the other quantity. Now we know that for any point P, theta can be multiple. अगर 45 है तो 45 plus 360 भी हो सकता है, 45 plus 720 भी हो सकता है. So यहाँ तो representation of coordinates unique है, लेकिन यहाँ unique नहीं है. But we will not consider those multiple values of theta. First task to develop an understanding of the polar coordinates is कि हमारे पास different points हैं, हम उनको plot करें. R is equal to 6 and theta is equal to pi by 4. R is equal to 5, theta is 2 pi by 4. R is equal to 3, theta is 5 pi by 4. Now there is a possibility of R being given as a negative quantity. तो जब भी R negative दिया हुआ होगा, तो in that condition क्या करना है कि हम will, instead of the direction, for example, I have minus I have a point minus 3 pi by 2. Now, in view of the angle pi by 2 indicates this. Now, R distance, since given is negative, we will not consider the usual direction. Instead, we will consider the opposite direction. So this point will be minus 3 pi by 2, whereas this point will be 3 pi by 2. So negative R interpreted just like in Cartesian coordinates, आप x is equal to constant consider करते हैं, तो that is a vertical line. For example, x is equal to 3 is a vertical line at a distance of 3 units from y-axis. इस तरह y is equal to constant is a horizontal line. So y is equal to minus 5. A horizontal line 5 units below x-axis. लेकिन जिस वक्त मैं polar coordinates में आता हूँ, r is equal to constant, for example, r is equal to theta. So these are the relations between Cartesian and polar coordinates that can be derived from any figure of this type. This is r, this is pole, this is point, that we call it A, this angle is theta, this is x and this is y. So x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, x square plus y square is equal to r square, and theta is equal to tan inverse phi upon x. तो अगर r is equal to 3 दिया हुआ है मुझे, यानी एक वेरिएबल out of theta r and theta constant दिया हुआ है, so इसका स्क्वायर कर लें, r square is equal to 9 means x square plus y square is equal to 9, जो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 पे है और जिसका रेडियस 3 है. एट द सेम टाइम अगर मैं थीटा कांस्टेंट कर दूं, तो इसका मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है, जो फिक्स डायरेक्शन में एक हाफ लाइन है. थीटा वैसे तो tan इनवर्स phi upon x है, अगर मैं थीटा कांस्टेंट pi by 4 ले लूं, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा विल बी 1.
और आपको पता है टेंजेंट थीटा इज द स्लोप, सो इट्स अ लाइन y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x लाइन जो है अगर मैं ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊं, so that line will be representing something like this. But when I consider it as a line represented by theta constant, थीटा की एक वैल्यू होगी, जबकि यहाँ थीटा की दो वैल्यू है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू यहाँ से घुमा के है. So that means we will consider in fact a ray like this only in one direction. Sometimes for some particular purpose we can consider this line completely orange line. Lekin technically r is theta is equal to constant is half a line which we can call a ray originating from the pole going away from the pole. Negative theta की बात मैं डिस्कस कर चुका, and here it is placed again. Okay, कैसे y is equal to fx लिया करते थे, यानी x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. यहाँ पर कर्व की इक्वेशन जो है वो r is equal to f theta होगी, यानी theta is the independent variable and r is the dependent variable. So हमारी इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी होंगी. Let us see r is equal to -4 cos theta क्या चीज है. तो इसका आसान तरीका ये है कि if we can multiply both sides, if we multiply both sides with r, तो r square is equal to -4 r cos theta. तो r square तो x square plus y square होता है और r cos theta x होता है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके x square plus 4x plus 4 on each side, so this become x plus 2 whole square, and I'm done. So what we get is a circle. The circle, this one, has a center at -2, 0, that is on x-axis negative side. The radius is 2. So if you consider x and y 0, you see that this equation is satisfied. So ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल की अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, so ये सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस 2 है, जिसका सेंटर -2, ये -2 0 है, और x is equal to 0, y is equal to 0. This equation is satisfied. इसका ये सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा है. जब सेंटर यहाँ पे और रेडियस जो है इसका 2 है, तो ये सर्कल जो है -16 sin theta r is equal to, तो इसी तरह आप स्क्वायर कंप्लीट करके ये सकते हैं, and you get a circle with radius 8, centered at 0 - 8. अरे यार ये वाला जो है मैंने गलत बना दिया. इसको आप कंसीडर करें कि ये 0 - 8 है, जबकि -2 0 will be like this. So अगर मैं फुल स्केल प्रॉब्लम पे जाऊं पोलर बनाने की, यानी इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग the polar equation into Cartesian equation और फिर ऐसी इक्वेशन बनाऊं जिसको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, तो काम निस्बतन आसान है. लेकिन अगर मैं पोलर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मेरा पोलर ग्राफ पेपर कंपेयर टू माय कार्टेशियन ग्राफ पेपर, मेरा कार्टेशियन ग्राफ पेपर क्या होता है? There are horizontal lines, there are vertical lines, because Cartesian coordinates, they are giving distances from vertical lines or distances from horizontal line. लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट क्या है कि ओरिजिन या पोल से डिस्टेंस बता रहा है,
और पोलर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से एंगल बता रहा है। तो जो पॉइंट ये पॉइंट जो मैं है लिखा है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, it has to be 4, 0. 4 is r and 0 is theta. 1 2 3 4, ये भी 4, π/6. This is r and this is theta. तो हमें पोलर पेपर इस तरह से बताना पड़ेगा. But we don't go into that detail and we learn some other ways of representing things. I have discussed very simple things, but I'll try to keep it very simple. ये जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें सिर्फ आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पॉइंट के, उसको आपसे कहा गया कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालें. x = r cos थीटा, y = r sin थीटा. और अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो उससे आप पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालें. तो x² + y² = r², and tangent theta is y/x, and tan inverse theta, मैंने कहा था कि tan inverse theta की मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो वो इंडिकेट की गई हैं. एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है और एक, क्योंकि आप टेंजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेंजेंट जो है यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. तो अगर आपके पास π/3 रिजल्ट आता है तो 4π/3 भी लेना पड़ेगा. अगर आपके पास टेंजेंट नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है, यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है. सो अगर यहाँ आपका कोई एंगल आया, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री आया, तो 180 ऐड करना पड़ेगा, 280 भी रिजल्ट हो सकता है. बट वी विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम. ये एक पुरानी ट्रिक है जिसके जरिए हम वैल्यूज कुछ याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि साइन ऑफ ब्ला ब्ला एंगल विल बी व्हाट. पुरानी ट्रिक है, इसको 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इन नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स हैं, these are values of the sine for standard angles. 0 π/6 यानी 30, π/4 यानी 45, π/6 यानी 60, और cos की वैल्यू इसकी रिवर्स है. एंड देन साइन की वैल्यू यहाँ जहाँ 0 से 1 तक पहुंची तो 1 से वापस 0 तक आएंगी पाई पे, और स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए यही वैल्यू रिपीट होगी. फिर वापस न्यूमेरिकली इनमें इजाफा होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में भी नेगेटिव रहेगा. अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ये टेबल करें, लेकिन आपका कैलकुलेटर इज गुड इनफ. और मैंने रिजल्ट एक्सेप्ट के जब तुम टेंजेंट इनवर्स निकालोगे तो तुम्हारा कैलकुलेटर या तो इस कोऑर्डिनेट का रिजल्ट देगा या इसका देगा. इस कोऑर्डिनेट के रिजल्ट को नहीं देगा जो कि तुमको यूज करने होंगे. मैं बात कर चुका r = कांस्टेंट की, थीटा = कांस्टेंट की. कुछ फेमिलियर पोलर कर्व्स. r = थीटा अगर मैं फ्री छोड़ दूं क्या मतलब है? थीटा कैन बी एनी एंगल. So theta can be any angle. So 0 पे 0, π/2 पे. Now remember that pi is considered in radians. Yeah, theta is considered in radians, and pi means 3.14 blah blah blah. So π/2 will be half of this. Then pi is 3.14. Then 3π/2. Then 2 pi. So r is equal to the angle, and angle is ever increasing. That means the point is spiraling around and goes to infinity. It can be k theta where k is not 0. So इससे हम spirals बना सकते हैं. Whereas circles, तो मैंने दो टाइप के सर्किल लिखे हैं, r = a sin theta और r = b sin theta, जिनकी एग्जाम्पल्स मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे.
अगर डायरेक्टली आप चाहते हैं कि प्लॉट करें इनको r is equal to sin theta को और r is equal to 2 cos theta को, तो आप कर सकते हैं. For example, this is the r is equal to sin theta. Theta is equal to 0, r will be 0. Theta is equal to pi by 6, r will be 1 by 2. Theta is equal to pi by 3, r will be root 3 by 2, and theta is equal to pi by 2, 1. And then up to 2 pi by 3, 5 pi by 6, and back to pi, and pi sin pi is 0 again. तो ये सर्किल जो है ये डेवलप हो रहा है थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक. अगर आप आगे बढ़ना चाहें तब भी इसी पॉइंट के पॉइंट्स आते रहेंगे. हाँ, ये जरूर है कि जब थीटा तुम आगे की वैल्यूज लोगे, फॉर एग्जांपल थीटा तुम लेते हो 3 पाई बाई 2, जो कि ये नीचे वाली डायरेक्शन है, मगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू ये वो -1 आएगी, तो इसका मतलब वापस आ जाओगे. तो आने वाली थीटा वैल्यूज के लिए भी यही सर्कल ट्रेस होगा. So you can place a sense of direction like orientation previously considered. तो साइन थीटा का ग्राफ जो है वो डायरेक्टली पोलर कोऑर्डिनेट्स में बनाना या आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. I have left these for your own consideration. Sin theta एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, लेकिन माइनस साइन थीटा एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा. cos 2 थीटा या r इज इक्वल टू cos थीटा या 2 cos थीटा, ये कहाँ बनेगा, ये y एक्सिस के राइट पे बनेगा, लेकिन अगर माइनस कर दूं तो y एक्सिस के लेफ्ट पे बनेगा. सो आफ्टर सर्कल्स, of course, there are many other ways of making circles in polar coordinates. But the simplest are r is equal to constant, या r is equal to constant times sin theta, and r is equal to constant times cos theta. और मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चाहिए होता है, जिसमें सर्कल जो है वो किसी आर्बिट्री पॉइंट पे हो, उसका रेडियस आर्बिट्री हो, एंड वी डोंट गो फॉर दैट इन दिस कोर्स. रोज कर्व्स, रोज कर्व्स जो हैं वो वैसे तो बड़े दिलचस्प हैं, बट इफ मेजर CS के स्टूडेंट्स अगर काम कर रहे हों या कोर्स कर रहे हों, तो उनको मैं फोर्स करता हूँ कि इनके ग्राफ्स जो है वो अपने किसी ग्राफ यूटिलिटी किसी भी लैंग्वेज में C से लेके और अब आजकल जो पाइथन इस्तेमाल हो रही है, हर एक में ग्राफिक यूटिलिटीज हैं, बल्कि मेरे ख्याल है अब जो लैंग्वेजेस आ रही हैं उनमें तो ये कर्व्स बिल्ड इन है कि आप उसको सिर्फ a और n की वैल्यू दें और उससे बोले r इज इक्वल टू a sin थीटा ग्राफ बना दे, वो बना देगा. रोज कर्व क्यों कहते हैं कि इन कर्व्स में पत्तियां बनती हैं, पत्तियां कैसे बनती हैं इसकी तफसीलात थोड़ी सी मैंने यहाँ डिस्कस की हैं. यहाँ इस टेबल में तो सिर्फ ये बताया है कि r अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 4 पत्तियां होंगी, n इज इक्वल टू 3 है तो 3 पत्तियां होंगी, n इज इक्वल टू 4 है तो 8 पत्तियां होंगी. There are 8 petals in this. 5 के लिए 5, n इज इक्वल टू 5, यानी ऑड नंबर के लिए तो जो नंबर n है उतने ही petals बनेंगे, लेकिन अगर इवन नंबर है n तो जो नंबर है उसकी डबल नंबर ऑफ petals बनेंगे. साइन के केस में ये है, कॉस के केस में ये है, लेकिन जाहिर है कि ये इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी पत्ती किस तरह से बिल्ड हो रही है, इसकी मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. यहाँ पे सिर्फ मैंने r इज इक्वल टू 2 sin थीटा को बाकायदा थीटा sin थीटा देन r इज इक्वल टू 2 sin थीटा ये वैल्यूज लिख के और फिर इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दिखाएंगे आपको. रेड डॉट्स आर द पॉइंट्स calculated and r is equal to cos 2 theta. That means I'm talking about a rose curve with 4 petals.
तो यहाँ मैंने आर थीटा और आर टेबुलेट किए में। थीटा इक्वल टू 0 के लिए आर क्या है, 10 डिग्रीज के लिए क्या है, 15 के लिए क्या है, 20 के लिए क्या है, 30, यानी मैंने शॉर्टर लिया। 45 पे जाके वैल्यू 2 से कम हो रही है और मेरे 45 now 0 डिग्री पे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आई हैव गॉट 2 यूनिट्स। इसका अंदर ये ब्लू कर्व शुरू हुआ, 0 से 45 तक आर पॉजिटिव आ रहा है और ब्लू कर्व आ रहा है। ब्लू कर्व बाकी कहाँ से आ रहा है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन ये पहली जो वैल्यूज हैं 0 to 45 डिग्रीज, यहाँ से कर्व जनरेट होके, लेट मी चेंज द कलर टू मेक इट ब्राइटर, यानी we started from here and then the curve of the points of the curve that we are obtaining comes here. यहाँ से कहाँ जाता है, ब्राउन कर्व पे आ जाता है। जैसे ही मैं साइन 45 से आगे लेता हूँ, आर की वैल्यू थीटा को डबल करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो 60 का डबल 120 है, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए जहाँ कॉस्ट नेगेटिव है। तो यहाँ के बाद कर्व की पॉइंट्स इस डायरेक्शन में आना शुरू हो गए और इसके बाद भी नेगेटिव रहे, कहाँ तक, 135 डिग्री तक। तो 45 से 90, 90 से 45 एक पूरा गुलाब का एक पत्ता बन रहा है। Then from 135, where do we go? Again, R is positive. So 140 degrees and R comes in this direction. So pink color 135 से 180 और से 225. And then the black curve, यहाँ से फिर values इस तरफ जाती हैं 315 तक, और 315 के बाद यहाँ से फिर ये ब्लू वाली पेटल जो है इसके पॉइंट्स आना शुरू होते हैं। एंड इन दिस वे द कर्व इज कंप्लीटेड। पेटल्स के अलावा और जो कॉमन इंटरेस्ट के कर्व्स हैं वो कार्डियोइड एंड लेमिकॉन्स कहलाते हैं। दिस इज कार्डियोइड and this is of our interest. Equations are r is equal to a plus minus b sin theta या r a plus minus b cos theta. Cos theta और sin theta जो है इनकी डायरेक्शंस का तायुन करते हैं और a और b जो है इनकी शेप डिटरमाइन करते हैं। Let me repeat, sin theta और cos theta इनकी डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं और a और b की रेशियो जो है इनकी शेप डिटरमाइन करता है। I'm not going into the details of all these shapes. I'm concerned with when a and b are same, so I am restricting to only this. बाकी जो है वो इस वक्त हमारी स्टडी का हिस्सा नहीं है। So cardioid r is equal to a plus a cos theta. इसमें देखिए अगर theta is equal to 0 and in this direction I consider theta is equal to 0, cos 0 is 1, so a plus a is 2a. That is the largest value of r possible for this cardioid. When theta is equal to pi by 2, cos is 0, so r is equal to a, is this point. When theta is equal to pi, cos theta is minus 1, so a minus a is 0, so the cardioid comes here. So points are being traced in this direction. After pi, as you keep on taking larger values of angle, you'll start getting r larger and larger. At 3 pi by 2, cos 3 pi by 2 is 0 again, so r is equal to a. And then as theta keeps on increasing, you keep on getting larger and larger value of r.
The value of r cannot be more than 2a because cos theta is largest 1. The cos theta largest 1 है और smallest -1 है. इससे मुझे किसी भी, अगर मैं लिखता हूँ r is equal to 1 plus cos theta, मैं कहूँगा कि कार्डियाइड, मेरा दिल जो है उसका राउंड पार्ट राइट साइड पे है और पंच पार्ट लेफ्ट साइड पे है. अगर मैं r is equal to 1 minus cos theta कर दूं तो राउंड पार्ट लेफ्ट पे चला जाएगा लाइक दिस, और पंच पार्ट जो है वो राइट पे आ जाएगा. r is equal to a plus a sin theta. Sin theta becomes 1 at pi by 2. So largest r value is 2a. Sin 0 is 0, so a. Sin pi is 0, so a. And sin 3 pi by 2 is -1, so 0. So a plus a sin theta, cardioid जो है उसमें राउंड पार्ट अपवर्ड है, a minus a sin theta में राउंड पार्ट डाउनवर्ड है. So these are the curves, cardioids, that I consider whether for assignment or for finals. Spirals I'm not considering. ये मैंने एक कॉन्वेक्स लिमिकॉन बनाया है कि ये दोनों अगर a और b बराबर नहीं होते तो कुछ और होता है, but we are not considering this. We restrict our study to cardioids only. इसमें कॉन्वेक्स लिमिकॉन इसलिए कहा गया है कि राउंड पार्ट इज देयर, लेकिन वो जो पंच पार्ट था वो थोड़ा सा फूल गया है, कॉन्वेक्स शेप में आ गया है, डिपेंडिंग ऑन कि a अपॉन b जो है वो ग्रेटर देन 1 है. 1 plus cosine theta plotted again, and some exercises that are here that you should be going through. ये points plot किए गए हैं. ये 2 points हैं, ये गलत है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने को कहा गया था, वो पॉइंट इस पे प्लॉट किए गए हैं. अगर r is equal to 6 और theta is equal to pi by 6 है तो x और y क्या होंगे? R is equal to this, y is equal to this, what will be x is equal to this, y is equal to this, what will be r and what will be theta? Note that I have two values of theta. In fact मैं minus pi by 6 भी ले सकता हूँ और 5 pi by 6 दोनों ले सकता हूँ. That means this point can be represented by two set of values of theta. So x y दिए हो r theta निकालना, r theta दिए में हो x y निकालना. फिर polar equations consider करना. Now note that r sin theta is equal to 4. तो r sin theta तो y होता है. Y is equal to 4 का मतलब horizontal line है. r is equal to 3 cos theta तो ये सर्कल है. r is equal to 6 upon this. This becomes this. Cross multiplication के बाद r cos theta x है, r sin theta y है. लाइन की इक्वेशन बन गई. And r is equal to 5 secant theta, तो 5 upon cos theta. Cross multiply किया, r cos theta is equal to 5, and that means x is equal to y. That is vertical line. R is equal to secant theta into tan theta. मुझे एक चीज नोट करो, मैंने इसका ये डिस्कस 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, इसमें से 4 कॉमन निकाल लो और ना भी निकालो तो r से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू. तो r स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4y. तो ये सर्किल की इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y. इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 16 ऐड किया, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 16 ऐड किया, इसका मतलब 32 ऐड किया, तो सर्किल की इक्वेशन आ गई.
secant theta into tangent theta, तो 1 upon cos sin upon cos, cos स्क्वायर उठ के इधर आ गया, sin थीटा अकेला रह गया, r से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, लेफ्ट पे हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो कि x स्क्वायर है, r sin थीटा जो कि y स्क्वायर है, तो पैराबोला आ गया। Now, out of these questions, only those that have a plus minus a cos theta and a plus minus a sin theta. For example, I don't want this, I don't want this, where these numbers are different. So जहाँ same है ये बस ये स्पाइरल है, कोई जरूरत नहीं, ये 4-5 कार्डियाइड के क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है तो उससे पोलर इक्वेशन बनाना, पोलर इक्वेशन दिया हुआ है उससे कार्टेशियन इक्वेशन बनाना, आपको कंडीशन दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, सर्किल विद रेडियस दिस, सेंटर एट दिस, तो सर्किल की इक्वेशन लिखी जैसे कि लिखते हैं, उसमें जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है वहाँ आर स्क्वायर लिख दिया, जहाँ पे सिर्फ एक्स आ रहा है वहाँ आर कॉस थीटा लिख दिया, जहाँ सिर्फ वाई आ रहा है वहाँ आर साइन थीटा लिख दिया, तो पोलर इक्वेशन निकल आएगी। So these are the things that I wanted to introduce for polar coordinates and polar graphs. So I will be focusing on point plot करना, r और थीटा दिए हुए हों, या तो xy निकाल के point plot करो या directly point plot करो polar graph पे। I will concentrate on circles of very simple type, where r is equal to constant, where r is equal to or theta is equal to constant. R is equal to constant is a circle at center with center at origin, and theta is equal to constant is a ray starting at the pole going away from the pole. Or circles of the type r is equal to constant times cos theta, r is equal to constant times sin theta. Transformation between Cartesian coordinates and polar coordinates. Some graphs, circles, rays, further circles, rose curves, और रोज कर्व्स जो हैं उनमें सिर्फ ये, इनको नहीं। Plotting a circle directly in polar coordinates, not change करें आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तब भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा। तो सेंटर 0-1 ब्लू पॉइंट के तौर पर दिखाया हुआ है, रोज कर्व प्लॉट करके दिखाया हुआ है, ये आपको गाइड किया हुआ है कि कर्व का कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा पार्ट जो है वो किन एंगल्स के लिए आ रहा है। Families of cardioids and lemnicons which are defined by these equations, इनमें सिर्फ I am considering case A is equal to B. That means this case. That means only cardioids. और cardioids में से हमारे पास ये 4 types. Cos theta positive on the right. हाँ, जाहिर है कि I can consider R is equal to minus A minus A cos theta. The trick is what? Look at what is the value of R for theta 0. अगर थीटा 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो R थीटा 0 की डायरेक्शन तो ये है,
this is the direction of theta is equal to 0. बट r की वैल्यू -2i, तो पॉइंट जो है वो इसके ऑपोजिट जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू π/2 0 होता है, तो π/2 की डायरेक्शन तो ये है, रिजल्ट क्या आएगा -a, तो -a तो इधर आएगा, इसका मतलब कार्डियाइड का जो पार्ट है वो इधर से आ रहा है, और पान का पत्ता यहाँ बंद हो रहा है। When theta will be pi, pi की डायरेक्शन तो ये है, cos pi is -1, -1 का मतलब है माइनस से प्लस। कार्डियोइड्स पैरल को गौर नहीं कर रहे हैं हम, और एक्सरसाइज के हमने 10 क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किए, विल फोकस ऑन दिस, इसमें से भी आपको बता दिया। that's it. हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वो वैसे तो इस आर्टिकल में 3 प्रॉब्लम्स हैं, टेंजेंट लाइंस हैं, उसके अलावा आर्क लेंथ है, और एक एरियाज है, लेकिन एरियाज वी आर नॉट कंसीडरिंग। जब भी मैं टेंजेंट लाइन निकालता हूँ तो मुझे स्लोप निकालना होता है dv/dx। सो r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos थीटा। तो अगर x इज इक्वल टू r cos थीटा को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कीप r एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, keep cos theta as it is, r derivative dr/dt. So the numerator here, dy/d r is equal to sin theta. So keep r as it is, sin theta का derivative cos theta plus sin theta as it is, or dr/d. So the denominator, नहीं उल्टा हो गया, dy/dx d theta जो है वो न्यूमरेटर है, और dx/d theta वो डिनोमिनेटर है। So we have to find out tangent to the curve. So whether you bother about the shape of the curve or not, हमसे कहा गया find the slope of the tangent line to the circle r is equal to 4 cos theta at the point theta is equal to 4. So whether you make this figure or not, what you need to do, the formula is this, r is equal to 4 cos theta. तो r की जगह 4 cos theta रखा, cos theta पहले से मौजूद था, तो 4 cos स्क्वायर हो गया, sin थीटा पहले से मौजूद था, cos थीटा का डेरिवेटिव जो है या dr/d थीटा जो है 4 माइनस sin थीटा, सो dr/d, सो r और dr/d थीटा ये और ये फॉर्मूला में रख देना है, फॉर्मूला रख के सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो कुछ भी आता है वो निकाल लेना है। थीटा दिया हुआ है π/4, और π/4 जब तुम इसमें रखोगे तो π/2 π/2, cos π/2 is 0, sin π/2 is 1, 0/1, तो 0 आ गया, which implies that the circle has a horizontal tangent. You know that m is equal to 0 means horizontal tangent. So whether you make this geometry or not, depending on the question. Question का slope मालूम करो, tangent line का, that's it. Anyways, there is an interesting situation.
मैं अगर थीटा इज इक्वल टू 0 कंसीडर करूं तो थीटा 0 से ये cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, r प्लस 0 और 0 प्लस डी आर बाई डी थीटा. So slope of the tangent in the direction theta is equal to 0 will be given by this formula, which you can also write as r secant theta d theta by dr. लेकिन अगर r is equal to 0 कंसिडर करोगे जैसे इसने किया हुआ है, तो तुम्हें थीटा इज इक्वल टू 0 में तो हम बॉदर नहीं कर रहे थे r क्या है, r की जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ रख देंगे. लेकिन अगर r is equal to 0 दिया हुआ है, you are at the pole. Now at the pole, that means at this point, what is theta? Theta can be any of the angle. So now theta is equal to theta naught. So जहाँ r 0 है तो ये 0 ये 0. Sin theta upon cos theta. इसके साथ भी dr by d theta, इसके साथ भी dr by d theta. वो कैंसिल आउट हो जाएगा. So dy by dx in case of r is equal to 0 will be defined by the tangent of the angle जो corresponding है. So this is the formula for 0 theta naught for the slope, and this is the formula for r0. So for finding out angle of the tangent, we have to use this formula, and we'll discuss the problems a little later. Please comments show down out of the discussion. Arc length. Arc length का ये formula very simple. हमारे पास अब r is equal to f theta है. You remember कि arc length का हमने जो पहला formula देखा था, that was what? In Cartesian coordinates, x is equal to a to b square root of 1 plus dy by dx squared dy dx, or y is equal to c to d integral under the root 1 plus dx by dy square dy. फिर हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में देखा कि t is equal to t1 to t2 square root of dx by dt whole square plus dy by dt whole square dt. So in fact मैं उन फॉर्मूला को मॉडिफाई करके ये बना सकता हूँ, r square plus dr by d theta whole square. One problem can be कि भाई हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले को इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बड़ी सीधी सी चीज है हमारे पास dy by dx पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लिखा था हमने अभी, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं. और भी कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, पैरामीट्रिक फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है. x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं. But I'm not going into the details of that, and just consider this arc length formula. So अगर मुझे कोई भी कर्व दिया हुआ पोलर कर्व, only 10 students are here and 41 voted for option 2. मेरा तजर्बा जो है वो बड़ा कामयाब गया. अब तो नहीं करूंगा,
ऑप्शन 2 के जिन्होंने 41 वोट दिए थे, कहाँ है वो? मौजूद है यहाँ पे? आपने फैसिलिटी हासिल करनी है, आपको उसके लिए वक्त लगाना पड़ेगा। असाइनमेंट दे दूंगा मैं। ऑप्शन 2, मिस्टर ऑप्शन 2, लेट मी शो यू मेरे पास क्या रिजल्ट्स हैं। That is 10. That was first option. So, can you see this? 41 votes for option 2, 15 votes for option 1. Option 1 था वो कि हम 10.2 पे क्लोज करते हैं। Okay, no problem. And no one opted for the third option. So, yes, I get your point. और बात ये है कि मैंने सोचा कि मैं आज क्लास लूँ और देखता हूँ क्या रिस्पांस आता है। वो जिन्होंने मिड टर्म के लिए 10 मार्क के उसमें लालच में ऑप्शन 2 41 लोगों ने दे दिया, and none of them is present here. Anyways, arc length problems are depending on this formula, this one. Given r, you have to just write down dr by d theta. So r square e power 2 theta. जब dr by d theta लोगे तो वो भी e power 2 theta होगा, e power theta होगा, उसका स्क्वायर e power। सिंप्लीफाई होके ये दोनों सेम है, रूट 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा। यार बातें बंद करना। हाँ, लेकिन अब मुझे फिजा इज टॉकिंग। फिजा सही है, ऑप्शन 1। मैं कल रात को मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी कि मेरा मूड नहीं था, पता नहीं मैं कहा था कि पता नहीं मैं क्लास ले सकूंगा नहीं ले सकूंगा, लेकिन मैंने क्या यार कुछ बातें आप लोगों से और डिस्कस करूँगा। 5-10 लोग क्लास के अंदर होते हैं, रिकॉर्डिंग कोई देख लेता है, उसकी बड़ी मेहरबानी। तो थोड़ी सी चीजें और सिखा दूँ, सीख लो तो अच्छा है। अभी पीपल वर सेइंग दैट सर इंशाल्लाह, नहीं वो तो पहले वाले कह रहे थे कि अगला कोर्स जो रियल एनालिसिस का है उसमें इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, देखी जाएगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो इंसान बुनियादी तौर पे लेजी होता है। मैं भी ये उतना ही लेजी हूँ जितना कोई भी लेजी हो सकता है, लेकिन बस मैथमेटिक्स करते वक्त मुझे जान थोड़ी सी ज्यादा बेहतर आ जाती है, मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है। ठीक है, वीकनेस की वजह से आवाज थोड़ी नीचे है, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम है, इट्स ऑल राइट। But I always enjoy doing mathematics, talking about mathematics, so I'm doing it. R is equal to e power theta. Now this cardioid कहता है कि टोटल लेंथ निकालो कार्डियोइड की। This cardioid is symmetric about the x-axis. So मैं इसकी पूरी लेंथ निकालने के लिए 0 to 2 पाई भी कर सकता हूँ और 0 to पाई भी कर सकता हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से। लेकिन r और dr by dz से सवाल करना है, तो r is 1 plus cos theta. So dr by d theta is what? Minus sin theta. So r is equal to 1 plus cos theta whole square. dr by d theta is minus sin theta whole square.
it becomes 1 plus cos theta, which half angle formula is a cos square theta by 2 हो गया, अंडर रूट की वजह से cos थीटा बाई 2 रह गया, उसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके इसने वही किया अल्टीमेटली 0 to 2 पाई के बजाय 0 to पाई। ओरिजिनल रिजल्ट में √2 था, इंटीग्रेशन की वजह से ये पर √2 निकला था। कैसे? इनको ओपन किया, ओके, सो 1 plus 2 cos theta plus cos square theta plus sin square theta, ये मिलके हुए 1, 2 plus 2 cos theta, 2 अंडर रूट बाहर निकल गया, 1 plus cos theta cos। इसके बाद इसने इसको cos square, सो 1 plus cos theta by 2 जो है that is cos square theta by 2। इसकी वजह से 1 plus cos theta को उससे 2 times cos square, 1 plus cos theta को 2 times cos square theta by 2 का, और ये वाला 2 जो है फिर √2 बना के बाहर निकाला तो बाहर 2 आ गया। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे पहले सिमेट्री इस्तेमाल करते हुए 0 to 2 पाई की जगह 0 to पाई किया और 2 से 4 कर दिया, डबल कर दिया, एंड गॉट द रिजल्ट। These are some problems of finding slopes at given theta value. These are some problems. This problem requires slope of the tangent at theta is equal to 0 and pi, or perhaps it asks for horizontal or vertical tangents as well. तो खैर हमने क्या किया कि r जो था उसे dr by dz लिखा और dy by dx के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद थीटा इज इक्वल टू 0 रख के देखा कि क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 0। Now this is the direction of theta is equal to 0 and there r is equal to 2। यहाँ पे स्लोप आ रहा है 1 and when I use theta is equal to pi, which is this direction, theta is equal to pi रखा 0 minus 1, ये तो पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, sin pi 0, नहीं ये 0 नहीं हुआ, sin pi 0, cos pi is -1 तो -2, cos pi is minus, okay it is -1, तो यहाँ पे स्लोप -1 आया। ये मैंने ऐसे निकाल लिया, थीटा पाई बाई 2 पे शायद कहा होगा, उससे ये निकाला कि सब में थीटा की जगह पाई बाई 2 रखें तो रिजल्ट 0 आता है, दैट मींस द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। देयर आर 2 वर्टिकल टेंजेंट्स आल्सो। As far as finding slope is concerned, मैं कार्डियाइड तक रिस्ट्रिक्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, स्लोप का फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर एनी। Here is a cardioid and it's asking about horizontal and vertical tangents, यानी जहाँ m0 हो या जहाँ 1/m0 हो। तो r लिया, उसका डेरिवेटिव लिया, स्लोप के फॉर्मूले में रखा, उसको सिंप्लीफाई किया as much as possible। उसके बाद कहा let m is equal to 0 for horizontal tangents। m is equal to 0 का मतलब है this whole thing is equal to 0, that means the numerator should be 0, denominator must not be। So numerator is equal to 0 means this thing। और इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज आई। There are 2 values of theta, two values of theta for which the slope will be 0। लेकिन इस वैल्यू को मैं ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने क्या किया, इसको एक और एंगल से देखा। cos theta is equal to minus cos 2 theta is equal to minus cos theta,
और मैं अपनी जनरल नॉलेज से कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पाई बाई 3 के लिए दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो cos pi by 3 या cos 2 pi by 3 will be negative of cos pi by 3. We know that. ये pi by 3 है और ये 2 pi by 3 है. तो √3/2 √3/2 यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. तो जो ये वाला cos 2 थीटा यानी 120 डिग्री का cos जो है वो सेम है नेगेटिव ऑफ cos of 60. उससे मैंने कहा कि m is equal to 0 for theta is equal to pi by 3. Not only pi by 3 but 5 pi by 3. Not only for that but for pi. Cos pi is -1 minus minus plus. Cos 2 pi is 1. मैंने अपनी जनरल नॉलेज ऑफ के cos थीटा की वैल्यूज क्या होंगी उससे ये 3 थीटा वैल्यूज निकाली और उससे 3 r वैल्यूज आ गई. तो ये 3 पॉइंट्स हैं इस कार्डियोइड पे जिस पे के हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है. So what cardioid is this? This is this cardioid 1 plus cos theta. So एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ पर है, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ है और एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ पे है. यानी यहाँ से जो कर्व आके मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है. What about the vertical tangents? And for vertical tangents, you need to have I don't want to see your comments anymore. So we have vertical slopes where vertical slopes का मतलब है denominator 0 slope का. So denominator is what? This is equal to 0. This is equal to 0. So we see that we have theta 0 पे ये equation satisfy होगी. And theta 0 का मतलब है what's the value? Theta 0 का मतलब cos 0 2 होना चाहिए. The vertical tangent 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 is 0. So A, I'm not looking at your comment. So theta is ये 0 आया 2 pi by 3 पे. So 1 plus 0 A. This should be A. 2 pi by 3. 2 pi by 3 is 160 degree. This is the vertical tangent. मैंने इसके कलर चेंज कर दूँ ना. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मुझे यहाँ मिला था, यहाँ मिला था और यहाँ मिला था. वर्टिकल टेंजेंट्स मुझे कहाँ मिल रहे हैं? एक यहाँ मिला है, एक 2 pi by 3 पे मिला है, एक 4 pi by 3 पे. सर्कल, कोई भी सर्कल है कहीं भी बना हुआ हो उसके 2 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होंगे और 2 वर्टिकल टेंजेंट होंगे. सो हमने r dr/d स्लोप के फॉर्मूले में रखा, सिंप्लीफाई किया. m is equal to 1 का मतलब 0 का मतलब है sin 2 theta 0, sin 2 theta 0 का मतलब है 2 theta is 0 और pi, that means theta is 0 और pi by 2. This is the horizontal tangent. Arc length formulas, and that's it about whenever you have to find the arc length. For example, in this case, in this case,
r is equal to 2a cos theta, एंटायर सर्कल dr by d थीटा निकाला। फॉर्मूला जो है वो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा का मतलब इसका स्क्वायर, 4a कॉमन निकला, बाकी बचा डी थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 4a बाहर निकल के दोनों जगह ए स्क्वायर है, बाहर निकल के 2a हो गया। और एंटायर सर्कल 0 से पाई बाई 2 तक डेवलप, 0 से पाई तक डेवलप होता है, विच सर्कल r is equal to a cos theta. Anyways, 2 pi r is the result. Entire length of the cardioid की प्रॉब्लम कर चुके हैं, हर जगह r का स्क्वायर और डी थीटा डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, that's it, and you can find it easily. So applications of the knowledge of polar coordinates is important. इस आर्टिकल में से मैं एरिया की हिस्सा छोड़ दिया मैंने, और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, that's about conic sections. uh, 10.3 और में जो भी मैंने आपसे 10.2 और 10.3 में जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो प्रॉब्लम रेंज मेरे इन लेक्चर शीट्स में है, यही प्रॉब्लम रेंज जो है इसी तरह का सवाल मैं असाइनमेंट में भी दे सकता हूँ और इसी तरह का सवाल मैं फाइनल में भी दे सकता हूँ। At times I like to have extended discussion from this topic, which is a very important and very practical topic. वो आजकल बात होती है, दो बड़ी अजीबोगरीब बातें होती हैं हमारे एक ख़ास तबका फ़िक्र की तरफ से, और वो ये कि ज़मीन फ्लैट है। बड़े काम करने के लिए इंसान को मुश्किलात से गुजरना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे तबका है जो बड़ा ख़ास तबका, ज़मीन फ्लैट है, दूसरा तबका ज़मीन जो है वो ज़मीन स्टेशनरी है, ज़मीन नहीं, चांद सितारे से और एक तबका जो है वो तो कुरान से साबित करने पर तुला हुआ रहता है। तो उनमें से एक साहब है जिनसे हमारा ज़ाती राब्ता रहता है, मैं तुम लोगों का कमेंट देख ही नहीं रहा, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, तुम लोग बैठना बैठ लो, जाना जाओ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। पता नहीं। एनीवेज तो उनको समझाता रहता हूँ कि भाई थोड़ी सी मैथमेटिक्स सीख लो, अगर मैथमेटिक्स सीख लोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और जो कुरान से साबित कर रहा है कि ज़मीन स्टेशनरी है, एक ख़ास लफ्ज़ का एक इंटरप्रिटेशन जो है उन्होंने कर दी है, अब उसके पीछे भागे जा रहे हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं भाई यूट्यूब पे, ज़मीन जो है वो स्टेशनरी है, या ज़मीन अगर स्टेशनरी है तो उसके हिसाब से तुम अपनी साइंस बनाओ, और उसके हिसाब से तुम अपने रॉकेट और मिसाइल बनाओ, और उसके हिसाब से तुम अमेरिका को तबाह करो। कैसी बेवकूफ़ बात है, न ग्रेविटी को मानते हैं, न ज़मीन के रोटेशन को, रेवोल्यूशन को मानते हैं, तो और साबित करते हैं कुरान, और साथ में ये भी कहते हैं कि जो ज़मीन को घूमता हुआ मानता है या ज़मीन की हरकत को मानता है वो कुरान के खिलाफ जाता है, लिहाजा वो इस्लाम से खारिज है। तो ये टॉपिक ऐसा है पॉलिटिकल नॉलेज का कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से बड़ा ताल्लुक़ है। कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है,
सोलर सिस्टम में या सोलर सिस्टम से बाहर, उसका पाथ जो है उसकी इक्वेशन इस तरह से होती है, a constant upon 1 plus minus a constant into sin या cosine theta. इसमें जो E है ये एनर्जी डिपेंडेंट है, फिजिकली ये एनर्जी डिपेंडेंट है, और मैथमेटिकली एक्सेंट्रिसिटी है कोने की। अगर E की वैल्यू 1 आ जाए जो खास एनर्जी के ऑब्जेक्ट के होगा, तो उसका पाथ जो है वो पैराबोला हो जाता है। और E की वैल्यू अगर एनर्जी कुछ कम है, एक क्रिटिकल एनर्जी हर E वैल्यू के लिए से कम है, पैराबोला ओपन पाथ है लेकिन अब क्लोज पाथ हो जाएगा, और वो होगा सॉरी नॉट एक्लिप्स, एलिप्स। And if very high energy, then it is hyperbola. अभी पिछले दिनों एक ऑब्जेक्ट क्रॉस्ड सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन एक ही प्लेन में सूरज के घूम रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है ये उस प्लेन के तकरीबन परपेंडिकुलर एंटर हुआ, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में से गुजरा और वापस सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। उसके ऊपर भी कुछ साइंस और कुछ नॉन साइंटिफिक लोगों ने ये उसकी साइंस में सीधी ये है कि it is probably an object that came from outer space, that means outer solar system. उसकी एनर्जी बहुत थी एंड वो सूरज के पास आया, इंटरप्लैनेटरी स्पेस से गुजरा और चला गया। So it must be following a hyperbolic path with very high value of energy. अगर उसकी ज्यादा हाई एनर्जी नहीं होती तो it could have been trapped around the sun in an elliptical orbit. So ये पूरी जो मैथमेटिक्स है डेवलप होती है starting with Newton's laws of motion, and all objects have this kind of path. इन कॉन्स्टेंट्स का भी कुछ फिजिकल, इस कॉन्स्टेंट का भी कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बता चुका। Now whether you try to explore science or physics, or you try to explore just mathematics, it's interesting in both ways. जिसको हम कोन कहते हैं वो तो आमतौर पे वन साइड कोन होती है, जैसे कि आप लड़कियों की जो मेहंदी होती है उसकी कोन्स आती है ना, तो अब वो यहाँ पे छेद होता है तो इससे वो मेहंदी लगाती है। बट हमारे जो मैथमेटिकल कोन है ना, दैट इज राइट सर्कुलर कोन, it extends in both the direction to infinity, और इसके sections करो, if I cut it horizontal, say like this, so what I will be getting is this circle on the cone. But if I cut it slant, I will get an ellipse on the surface of cone. ये वाला साइड है, अगर मैं इसके पैरेलल कट करूं तो I will have an open curve that will be parabola. और अगर इसका जो सिमेट्री एक्सिस है इसके पैरेलल कट कर दूं तो I will have two parts, two curves made on the surface of cone, one open upward, one open downward, and that is hyperbola. Now, this has nothing to do with physics. It is geometrical, not physical. मैथमेटिकली प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है in two unknowns represents a special curve depending on one thing that we call discriminant here, where b is the coefficient of x into y term, a is the coefficient of x squared term, and c is the coefficient of y squared term.
अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 1 हो तो ये इक्वेशन जो है या तो एलिप्स होगी या सर्किल होगी या इसका कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। इन केस ये पॉजिटिव हो तो फिर या तो हाइपरबोला होगा या फिर एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए then it will be parabola, a line or a pair of line or has no graphs। अच्छा जी, ये सारी चीजें जो है हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स। और एक चीज ये भी है कि ये इक्वेशन जो है कई कंडीशंस में इसकी शक्ल नहीं बदलती। शक्ल से क्या मतलब, constant times variable is independent variable square plus constant times independent variable, dependent variable, constant times dependent variable and so on। अगर मैं इसमें वेरिएबल ट्रांसलेशन कर दूं, यानी एक्सेस एक जगह से यहाँ, अगर मेरे ओरिजिनल एक्सेस यहाँ पे है तो मैं ट्रांसलेट कर दूं तब भी इसकी शक्ल नहीं बदलेगी, ये इसी फॉर्म में रहेगी। स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स आ जाएगा और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई आ जाएगा और ए बी सी विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कॉन्स्टेंट्स। इसी तरह अगर एक्स इक्वल कॉस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कर दूं और y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा कर दूं तब भी इसकी शक्ल इसी रहेगी, ऐसी रहेगी। और तीसरा ये कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर ये कर्व एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है तो चाहे मैं ये करूं चाहे मैं ये करूं वो एलिप्स ही रहेगा। अगर ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला। पर I would love to go into the details of all these proofs, but more important is कि भाई हम सर्कल जो है वो आमतौर पे हम इस किस्म की इक्वेशन से वाकिफ, अगर ये स्क्वायर्स खोल के रख दें तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाती है। मगर ये फाइल फॉर्म में ये बताती है कि सेंटर कहाँ पे है। सेंटर इज एट एच के शोन हियर और रेडियस कितना है, रेडियस आर है। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहे हैं तो जो रेडियस आर है वो दिस रेडियस, ये वाली जो इक्वेशन है वो अक्सर बेशतर इस फॉर्म में भी लिखी जाती है, यानी -2k की जगह g, सॉरी -2h की जगह g, -2k की जगह h होता है आमतौर पे। k लिख दीजिए कोई बात नहीं और बाकी जितना कांस्टेंट है कि वो पूरा पूरा l। तो इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं इक्वेशन तो हम कहते हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यानी if g is equal to -2h, so h जो है वो है x coordinate of the center, that is -g/2। इसी तरह अगर मैं इसको h कर दूं तो I will have -2k is equal to h, इसका मतलब k is equal to -h/2। ये सेंटर है, यानी मैं आपके सामने लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3/2 -2, यानी x का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव करें और हाफ कर दें, y का कोफिशिएंट नेगेटिव करें और हाफ कर दें। रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ g squared h squared, so g squared is what, 9 plus 16 minus 4l, this is the constant, divided by 2। What it means, मेरे ख्याल थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, 21/2 आ रहा है ये। अगर मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर कंप्लीट करूं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/2 y स्क्वायर प्लस 4y
प्लस 4 इज इक्वल टू, ये ऐड किया मैंने 9/2, ये ऐड किया मैंने और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 1. दैट मेक्स इट व्हाट, 9/2 प्लस 3 और इसका मतलब है तो दिया 6 और 9 15/2. सो स्क्वायर रूट ऑफ 15/2. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम रेडियस निकाल सकते हैं. यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे दी है और ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है कि डायरेक्टली यहाँ से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रीड करें, रेडियस रीड करें, एक्स इंटरसेप्ट निकालें जिसका मतलब है y0 रखें. y0 रखेंगे तो x की वैल्यूज आएंगी, x0 रखेंगे तो y की वैल्यूज आएंगी. अच्छा जी, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल एंड स्केच द ग्राफ. स्केच करा ना करें आप इसको x² - 12x इससे और इससे स्क्वायर कंप्लीट करें तो सेकंड टर्म 6 है तो 36 आ जाएगा यहाँ 36 प्लस y² प्लस 6y. यहाँ पे सेकंड टर्म 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा. ये 4 उठ के राइट साइड पे जाएगा. एडिशनल चीजें हैं 36 और 9 दैट मेक अप टू 49. सो सेंटर जो है दैट इज एट व्हाट, x - 6 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 होल स्क्वायर. तो 6 - 3 सेंटर हो गया और रेडियस जो है वो 7 आ गया. अच्छा, इलिप्स से पहले मैं आपसे कुछ और बात कर दूं. सपोर्ट पेजेस, मैंने बात की थी पैराबोला की. स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो है वो पैराबोला की हैं, ये और ये. इसके हिसाब से x पॉजिटिव होगा. जब x पॉजिटिव होगा और मैं इस ग्राफ को पहचानना चाहूं तो क्या क्या करूंगा. एक तो x को 0 रखूं तो y0 आएगा. इसका मतलब ये पॉइंट कोऑर्डिनेट पे है. x नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ y² दिया हुआ है. लिहाजा x ग्राफ जो है कंप्लीटली ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस होगा. अच्छा जनाब, अगर मैं x इज इक्वल टू a रख दूं तो y की वैल्यू क्या आएंगी. चलो भाई, x y पुराना खेल हमारा. x इक्वल टू 0, y 0. x इज इक्वल टू a 4a² प्लस माइनस 2a. तो यहाँ पे अगर मैं a का डिस्टेंस तो प्लस 2a माइनस 2a, a की जगह और कोई वैल्यू ले लूँ. एनीवेज, ये चूंकि ग्राफ जो है इसने टू द राइट ऑफ y एक्सिस रहना है, ये ग्राफ इस तरह से ओपन ग्राफ है. और शायद कैल्वन में आपने पढ़ा हो. फिर हम यहाँ पे इसको और नजर से देखते हैं. दैट इज दिस. एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम फोकस कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम a0 लेते हैं, और एक फिक्स लाइन है. पता नहीं कौन सी लाइन है लेकिन वो x इज इक्वल टू माइनस से d है. इस पॉइंट लाइन से ओरिजिन और ये यानी माइनस d नहीं बल्कि ये माइनस a है. यानी जितना दूर फोकस है y एक्सिस से उतना ही दूर ये लाइन है. और पैराबोला उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस
from this fixed point and perpendicular distance from this fixed line. FP, let me call it, ये V कहलाता है और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a, y. So ratio of PF and PA is equal to 1. Now what is PF? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x minus a whole square plus y minus 0 whole square divided by distance between them. इनका y तो सेम है तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? x minus a. So x plus a उठा के मैं यहाँ 1 की जगह ले आऊँ और स्क्वायर कर दूँ, ये स्क्वायर रूट हटा दूँ. So that makes it x square plus 2ax plus a square is equal to x square minus 2ax plus a square plus y square. And I notice that ये x square cancel हुआ, ये a square cancel हुआ, बाकी क्या बचा? ये 2a को दूसरी तरफ ले जाओ. So y square is equal to 4ax. It's a sort of derivation for with the parabola defined in a particular way, and that particular way is completely described here in this document. Parabola है कि नहीं है इसके अंदर? नहीं parabola है. Anyways आपकी उसमें है आप एक आर्टिकल एक जमाने में मैंने लिखा था और जिसमें अभी भी गलतियां हैं, उसको सही करना है, इसीलिए मैंने क्या अच्छा पढ़ाया नहीं. तो पैराबोला की इक्वेशन इस तरह से डिराइव हो जाती है. अच्छा, तो पैराबोला है क्या? F is a fixed point. L is a fixed line. Points on parabola. Satisfy what condition? Points P, X, Y. Distance from fixed point equals distance of points from fixed line. This is basically the definition of a parabola. What is the definition of a circle? Circle की definition है set of all points having same distance from a fixed point. ये जो fixed point है ये center है और ये जो fix all points having same distance, this distance is the radius. इसी तरह एलिप्स की डेफिनेशन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर अब लगता है कि आप बोर हो गए हैं. मुझे सब
मैं वार्म अप हुआ हूँ बहुत दिनों बाद, लेकिन कितने रह गए? 7 लोग रह गए। ओके, आई टर्मिनेट द सेशन। और अगर मेरा मूड हुआ तो एक सेशन में और कर लूंगा। लेट मी स्टॉप द